इंडियन मीडिया बुक के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। बेंगलुरु में लॉकडाउन का सवाल ही नहीं उठता, ऐसा बीएस येडियुरप्पा जी ने आज कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इकोनॉमी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको नज़र में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। आज सारे एमएलए और मिनिस्टर के साथ फिर से मीटिंग हुई। उस मीटिंग में फैसला लिया गया है कि बेंगलुरु में लॉकडाउन नहीं रहेगा। एक दिन पहले येडियुरप्पा जी ने कहा था कि कोरोना वायरस के प्रिकॉशन का जो रूल्स एंड रेगुलेशन लोग अगर फॉलो नहीं करेंगे तो बेंगलुरु में फिर से लॉकडाउन हो सकता है। लेकिन अब कहा गया है कि बेंगलुरु में लॉकडाउन नहीं रहेगा। मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो दो बड़ा मार्केट अभी बेंगलुरु में सील है। एक है केआर मार्केट, दूसरा है कलासी पाल्या। ये दो जगह ही बड़ा मार्केट अभी सील है। बाकी जिस जिस एरिया में कोरोना पॉजिटिव के केस आते हैं उस एरिया को सील किया जाएगा। लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि अब बेंगलुरु में टोटल लॉकडाउन नहीं रहेगा। ये घटना टूटीकोरिन की है, जहां के 59 इयर्स के जयराज और उनके बेटा जे फिनिक्स को 19 जून को पुलिस पकड़ के ले गई थी, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में इन लोगों ने अपने मोबाइल एसेसरीज के दुकान को खोल कर रखा था। लोकल मीडिया के अनुसार ये बताया जा रहा है कि पुलिस स्टेशन में जब वो लोग कस्टडी में थे, पुलिस ने उनको बुरी तरह से मारा, जिसके वजह से उनकी मौत हो गई। जे फिनिक्स बीमार हो गए और बाद में वहां के जनरल हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया और उनकी मौत 22 जून को हो गई। उसके एक दिन के बाद 23 जून के उनके फादर की भी मौत हो गई। लोकल मीडिया के अनुसार जब वो लोग पुलिस के कस्टडी में थे तो उनको सेक्सुअली अब्यूज किया गया था। Hi, I'm Suchitra. I'm South Indian and I hate how every South Indian issue becomes just a South Indian issue because we don't talk about it in English. So this video is in English and it is to explain in graphic detail what happened to Jayaraj and his son Phoenix during this past 1 week in a town in my state called Thoothukudi or Tuticorin. This treatment cannot be meted out even to serial killers, and these two gentlemen were completely innocent, and this is what the police did to them. This happened in Tuticorin. First, their knees were smashed with sticks or lathis. Their knees were completely crushed and smashed. Next, their faces were pushed against a wall and blows were rained on their backs and bottom till it ripped and bled. They were stripped completely and not even their underwear was spared. They were completely stripped naked and thrown into jail. The gates were locked, but we know for a fact that this is what happened behind the gates. They were taken to a spot where there were no CCTV cameras and steel-tipped wooden lathis or batons or sticks were shoved up their buttholes several times, and there was also a great deal of torture and damage inflicted on their genitalia, because eyewitnesses of the body have stated, they've said that both the genital region and the backside were completely ripped and mangled. Their chest hair was ripped out in tufts. And 3 times during the course of this entire torture, their blood-soaked clothes were sent back to their house and fresh clothes were demanded, and those would go back blood-soaked, and this happened 3 times. After a phony trial with a magistrate, this was arranged by the police, the two were taken back into custody, and 2 days later they've been pronounced dead due to heart failure and fever. These were hardworking, lower middle class, Tamil speaking people. You're not. Please tell their story or share this one. Right now, 2 cops have been suspended and a few have been transferred. That's not the solution, and that's not the answer, and that is not justice. This case cannot close like this. Please do not let it close unless and until we get the same justice George Floyd's murderers did. भिवंडी मुंबई में वहाँ एक मस्जिद है जिसके एक हिस्सा को ऑक्सीजन ट्रीटमेंट सेंटर के एरिया में बदल दिया गया है और अभी तक 113 लोगों की वहाँ पे ट्रीटमेंट हुई है और इसमें हर धर्म वाले जो वहाँ रहते हैं सारे जाके अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। ये एरिया पहले से बहुत सेंसिटिव है, इसलिए जिसने भी ये पहल लिया है ये बहुत अच्छा पहल है कि लोगों के अंदर भाईचारा बढ़ेगा। इस इलाके में अभी तक 1332 कोरोना पॉजिटिव के केस आए हैं और अभी तक 88 लोगों की मौत हो चुकी है। संडे के रात को 12 बजे के बाद से गुवाहाटी में टोटल लॉकडाउन होने के लिए वहां के हेल्थ मिनिस्टर ने ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि
पहला जो 7 दिन रहेगा उसमें सारी चीज़ें बंद रहेंगे, सिर्फ एसेंशियल चीज़ें खुली रहेंगी। तो हो सकता है जैसे कि दूध वर की दुकान है और आपका मेडिकल शॉप है वही खुला रहेगा, इवन तो ग्रोसरी शॉप भी बंद रहेंगे। उसके बाद से थोड़ी सी राहत दी जाएगी। जहाँ से भी टोटल लॉकडाउन की खबर आती है वहाँ के इकोनॉमी के लिए तो अच्छा नहीं है कि जो डेली वेजेस पे लोग काम कर रहे थे उनकी हालत ऑलरेडी बहुत ख़राब है। अगर फिर से कहीं भी लॉकडाउन होता है तो ग्राउंड का सिचुएशन बहुत ख़राब होने की चांस है। 60 साल की महिला ने केसी जनरल हॉस्पिटल के टॉयलेट में अपने आप को ख़त्म कर लिया। ये कोनिगल के राजा गोपाल नगर के रहने वाली थी। इनका एडमिशन हॉस्पिटल में 18 जून को हुआ था। उनके साथ उनके बहू और पोतों को भी एडमिट किया गया था। इन तीनों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। हॉस्पिटल के सोर्स से पता चला है कि डर और डिप्रेशन की वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया। ये घटना आज सुबह के 2:30 पे हुई है हॉस्पिटल के जानकारी के हिसाब से। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक। आपसे रिक्वेस्ट है कि इंडियन मीडिया बुक को सपोर्ट करें। इंडियन मीडिया बुक के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।